Assalamu alaikum students. It's chapter number 4, Land and Climate of Pakistan, and today my topic is Plateaus of Pakistan on page number 55 and 56. Students, first of all, I clear the concept that what are plateaus. A plateau is a flat or gently sloping elevated area of land that rises sharply above the surrounding land on at least one side. It is sometimes called a tableland because it looks like a table. स्टूडेंट्स, प्लेटो एक ऐसी ज़मीन होती है जो ऊंचाई पर वाक़ होती है, मगर इसकी सतह बिल्कुल प्लेन होती है या तकरीबन प्लेन होती है। जस्ट लाइक दी टेबल, टेबल को अगर आपने देखा हो तो टेबल ऊंचाई पर होती है, लेकिन टेबल की जो ऊपर की सतह होती है, यानी कि जो टेबल का ऊपर का सरफेस होता है, वो प्लेन होता है। स्टूडेंट्स, प्लेटोस आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड गैस एंड फार्मर्स रिलाई ऑन रेन वाटर. And the plateau is also known for its natural beauty. Look towards the map of Pakistan. It's Potwar Plateau and it includes parts of Rawalpindi, Islamabad, Attock, Chakwal and Jhelum. यानी कि स्टूडेंट्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल और जहलम के जो एरियाज हैं वो पोटवार प्लेटो में इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट मैप है इसमें बलूचिस्तान प्लेटो को हम देख सकते हैं। This plateau covers most of Balochistan and is surrounded by mountains like the Suleiman and Kirthar ranges. Plateaus. The following two plateaus are located in Pakistan. Number 1, the Potwar Plateau. Number 2, the Balochistan Plateau. Now I explained here the Potwar Plateau. This plateau lies between the river Indus and Jhelum. It starts in the south of river Jhelum near Tela Jogia and spreads to districts of Jhelum, Mianwali, Rawalpindi and some part of Islamabad. The surface of these areas is uneven. The height of this plateau ranges from 300 meters to 600 meters. The main rivers of this area are Swan and the Haro. Oil and other minerals are found at various places of this area. The salt range also starts from Tela Jogia in the river Jhelum and spreads to a few parts of Mianwali, Banno and Dera Ismail Khan. The average height of this range is about 700 meters, but at Sakisar, its height is 1500 meters. The entire area is almost barren. Minerals like gypsum, coal and salt are found in this range. इफ़ वी टॉक अबाउट पोटवार प्लेट्यू, ये रिवर सिंध और जहलम के दरमियान में वाक़ है। इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो दरिया जहलम के साउथ में टिला जोगिया के करीब से होती है और जहलम, मियानवाली, रावलपिंडी के अजला और इस्लामाबाद के कुछ हिस्से तक फैला हुआ है। इन इलाकों की सतह कटी पिटी हुई है और नाहमवार है, यानी कि अनइवन है। इस जो प्लेटो की हम बात कर रहे हैं इसकी बुलंदी 300 मीटर से 600 मीटर है। इस इलाके के मशहूर दरिया सवान और हारो हैं। इस इलाके की बेशतर मुकामात पर तेल और दीगर मादनियात पाई जाती है। सॉल्ट रेंज का सिलसिला भी इसी ही पोटवार प्लेटो के करीब वाक़ है। नमक की सबसे बड़ी खान खेवड़ा इस सिलसिले में वाक़ है। ये सिलसिला रिवर झेलम के जनूब में यानी कि साउथ में टिला जोगिया से शुरू होता है और मियाँ नवाली, बन्नो और डेरा इस्माइल खान के कुछ हिस्सों तक फैल जाता है। इस सिलसिले कोह की औसत बुलंदी 700 मीटर है। यहाँ इस सिलसिले से मुराद सॉल्ट रेंज है जिसकी बुलंदी 700 मीटर है। इसकी बुलंद तरीन चोटी सकेसर 1500 मीटर बुलंद है। ये पूरा इलाका तकरीबन बंजर है, लेकिन जिप्सम, कोयले और नमक जैसी मादनियात इस सिलसिले में पाई जाती हैं। यानी कि ये जो सॉल्ट रेंज है यहाँ पर आपको जिप्सम, कोयले और नमक के ज़खायर मिलेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, फार्मर्स रिलाई ऑन रेन वाटर. Soil is rocky, not very fertile. Farmers usually grow crops that need less water. यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ की ज़राअत का इन्हिसार बारिश के पानी पर है। यहाँ पर ऐसी फसल को उगाया जा सकता है जिसके लिए कम पानी की ज़रूरत हो। Students, if we talk about Balochistan Plateau, this plateau is located in the west of Kirthar and Suleiman Mountains. Its height is in between 650 meters, यानी कि 650 meters. The ranges of Toba, Kakkar and Chagi in the north separate it from Afghanistan. Among these ranges, the peaks of Ziyarat and Muslim Bagh stand as its highest points. Their height is approximately 2133 meters.
In the south of this plateau line ranges of Makran, and in the central line the central Brahul and North Makran hills. It is the largest plateau in Pakistan and covers about 40% area of Pakistan. High mountains are situated in the northwest which are covered with snow in winter. Rainfall in most areas of this plateau is scarce. It is mostly dry and barren. However, this area is rich in minerals. The main river of this plateau is Zob, which flows from the Suleiman Mountains. Porali, Hengol, and Dasht rivers are also situated in this plateau but are little importance. स्टूडेंट्स, अगर हम सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान यानी कि बलूचिस्तान प्लेटो के बारे में बात करें तो ये कोही सुलेमान और कीरथर के वेस्ट में वाक़ है। इसकी बुलंदी 650 मीटर है। नॉर्थ में टोबा कक्कर और चागी के पहाड़ी सिलसिले बलूचिस्तान को अफ़गानिस्तान से जुदा करते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में ज़ियारत और मुस्लिम बाग की चोटियाँ ज़्यादा बुलंद हैं। उनकी बुलंदी 2133 मीटर है। इस प्लेटो के साउथ में मकरान के पहाड़ी सिलसिले हैं, जबकि सेंटर में सेंट्रल ब्राहवी और नॉर्थ मकरानी सिलसिले यानी कि नॉर्थ मकरान हिल्स वाक़ हैं। शुमाल मगरिब में इसके यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक बहुत बड़ा डेज़र्ट है यानी कि रेगिस्तान है। यहाँ एक नमकीन पानी की झील है जिसे हामून मुश्किल कहते हैं, जिसे हम सॉल्ट वाटर की झील कह सकते हैं। इसमें कई छोटे छोटे दरिया गिरते हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्लेटो है जो पाकिस्तान के तकरीबन 40% यानी कि 40% रकबे पर फैला हुआ है। बलूचिस्तान प्लेटो मिनरल से मालामाल है। अगर हम रिवर्स के बारे में बात करें तो पोराली, हिंगोल और दश्त ऐसे रिवर्स हैं जो कि इस प्लेटो के करीब वाक़ हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कम है। इफ़ वी टॉक अबाउट बलूचिस्तान प्लेटो, इट इज़ रिच इन मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस, कॉपर एंड गोल्ड।